Good morning student, welcome back here. I hope all are well, and now today start for federalism and next lecture. Now let's see. Two routes to form federalism. Holding together. I'm already discussed the holding together. Country divides its power between the constituted state and the national government, and different constituted units of the federation have a unequal power. जैसा कि हमने आपको बताया, all states in Indian Union do not have a identical power, but some units of Indian Union and enjoy very little power. Just union territories. Student, what are union territories? Firstly, so the areas that are too small to be made an independent state, okay, independent state, and are so diverse that could not be merged, okay, that could be not merged with any of existing states are called union territories. okay, यहाँ पर आपने देखा इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड आर सो डाइवर्स दैट कुड नॉट बी मर्ज, ये मर्ज नहीं हुए और इनका नाम क्या कहा जाता है? यूनियन टेरिटरीज. तो जस्ट नेम यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. फर्स्टली स्टूडेंट सी लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, दादरा, नागर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप. तो आपने देखा कि यूनियन टेरिटरीज से जस्ट लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली, पौंडीचेरी एंड अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप. तो यहाँ पर हमने देखा कि टोटल हमारे पास जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो हमारी 7 है. नाउ स्टूडेंट, टू रूट्स टू फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म. फर्स्टली कमिंग टुगेदर एंड सेकेंड इज होल्डिंग टुगेदर. फर्स्ट one by one discuss a student coming together. Now I am already discussed the part of unitary system and federal system, but again the discussion for coming together and holding together. Now let's start. But coming together is federalism involve the independent states, okay, independent state coming together on their own to form of bigger unit. Because in coming together, units try to increase their security by pulling the sovereignty and retaining the identity. Okay, in this category of federation, all the constituent units usually have equal power. यहाँ पर equal power है and are strong vice versa for federal country. Just a student कि federation have been formed by two methods, but firstly coming together and holding together. तो firstly कि involve independent state coming together on their own student to form one big unit as a founder in like example all states have equal power. Just United States of America, see, Switzerland and Australia also. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, सुपीरियरिटी है, बट होल्डिंग टुगेदर जस्ट लाइक डिफरेंट. नाउ लेट्स सी. तो आपको क्लियर हो गया कि कमिंग टुगेदर में जो डिसीजन है वहाँ पर इक्वल है, वहाँ पर सप्रेशन नहीं है, इक्वल पावर है और जो भी डिसीजन है वो सेंट्रल लेगी, वही फॉलो सब लोग करेंगे. तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो भी पावर है वो एज अ इंडिपेंडेंट है, सिर्फ वन के पास है. और इस तरीके से आपने देखा कमिंग टुगेदर. Now the topic of creation of linguistic state was the first and major test for democratic politics in country. Just like the creation of linguistic state was the first and a major test for democratic politics in our country. So in 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create a new states. Okay, so this was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. So some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture या ethnicity और geography. बहुत सारे हमारे यहाँ कल्चर और ये सारी लेके बहुत सारी डाइवर्सिटी थी. तो दीज इंक्लूड स्टेट्स जस्ट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड. तो और जोग्राफी जस्ट लिंग्विस्टिक लाइक जैसे तमिलनाडु. तो जो तमिल में है, तमिल स्टेट, तो वो तमिलनाडु में अगर है तो तमिलनाडु की लैंग्वेज को यूज़ करेगा. तो इस तरीके की बात
और डिस्कशन हुआ, और व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तब यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया कि लोगों की जो डिमांड को देखते हुए कि जो जहाँ का स्टेट का है, अगर तमिल का है तो तमिलनाडु का है तो तमिल लैंग्वेज बोलेगा, बंगाल का है तो बंगाली बोलेगा, इस टाइप से यहाँ पर डिवीज़न हुआ लिंग्विस्टिक में। तो जो कैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स क्रिएशन हुआ, ये इस तरीके से हुआ स्टूडेंट कि व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट on the basis of language was raised, and some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. So the central government arrested the linguistic state for some time, and but later on the experience has shown that the formation of linguistic state has actually made the country more united. और इस तरीके से क्या है, कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यूनाइट रहेगी, एंड इट हैज़ ऑल्सो मेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईजियर। तो यहाँ पर इस तरीके का डिसीजन लिया गया। और फर्स्टली आप आर यू अंडरस्टूड कि जो क्रिएशन हुआ लिंग्विस्टिक स्टेट्स में वो किस ईयर से स्टार्ट हुआ स्टूडेंट, 1947 से। और 1947 में जो बाउंड्रीज थी हमारे सर्वल ओल्ड एरियाज और इंडिया वेयर चेंज इन ऑर्डर ऑफ क्रिएट न्यू स्टेट्स, सो वाइल सम स्टेट्स वेयर क्रिएटेड टू रिकग्नाइज द डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर। तो यहाँ पर ये देखा कि सबके जो कल्चर हैं, इथनिक है, हर चीज़ बहुत डाइवर्स, जियोग्राफिक, हर चीज़ को लेते हुए लिंग्विस्टिक है, सब डिफ्रेंशिएट है। तो यहाँ पर जैसे झारखंड है, उत्तराखंड है, नागालैंड है, तमिलनाडु है, तो इस तरीके से कि यहाँ पर चेंजेस हुआ। और जब चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट, तो दिस वाज डन टू इंश्योर कि दैट पीपल स्पोक सेम लैंग्वेज, क्या सब लोग सेम लैंग्वेज बोलेंगे, तो लिव द सेम स्टेट में रहते हुए सेम लैंग्वेज बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बट डिसीजन फॉर सम स्टेट कि वेयर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऐसा कोई बेसिस नहीं होगा कि लैंग्वेज सेम हो, बट टू रिकग्नाइज डिफरेंस बेसिस ऑन द कल्चर, अगर जिसका जो कल्चर है, जो एथनिटिक है और जियोग्राफिक, तो दीज इंक्लूड द स्टेट्स लाइक, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, इस तरीके की उनकी लैंग्वेजेस को फिर रखा गया। मान लीजिए तमिलनाडु तो तमिल लैंग्वेज होगी, इस तरीके से। तो व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज was raised, so some nation leaders feared that it would lead to the integration of the country. So the central government resisted the linguistic state for some time, and but later on the experience has shown that the formation of linguistic state has actually made the country more united. तो it has all made administration easier, और इस तरीके से एक administration अच्छा easier हुआ, और ये आपने देखा। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें अडॉप्ट की, language policies. Our constitution did not give the status of national language to any one language. Hindi was identified as the official language. So Hindi is the mother tongue of only about 40% of Indian. So to safeguard and protect other language, 21 other language were recognized as scheduled language by the constitution. और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रिकग्नाइज किया गया रिटन फॉर्म में। तो लैंग्वेज पॉलिसी इज़ अ सेफगार्ड to the language. It is the one of the most important aspects of constitution, and under the policy beside the Hindi and 21 other language are recognized as scheduled the languages by the constitution. So it is the main features of Indian language policies. तो फर्स्ट फीचर स्टूडेंट की आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी नेशनल लैंग्वेज, एंड द गवर्नमेंट हाउएवर अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ओनली टू हिंदी। तो ईच स्टेट इन इंडिया हैज़ टू ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। सबको ये लगा कि अब हिंदी ही बोलना रहेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन प्रोवाइड्स फॉर द यूज़ ऑफ इंग्लिश एंड अलॉन्ग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी प्रोवाइड किया कि अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज में आप हिंदी और इंग्लिश बोथ यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट वर्क इन ईच स्टेट टेक प्लेस in the official language of the concerned state. तो promotion of हिंदी continue to be the official policies of the government. जो ऐसी policies लाई गई जिसमें हिंदी को भी हिंदी promote हुआ, and government of India have but promotion does not mean that the central government तो can impose the हिंदी can state where people speak a different language. हिंदी तो है ही है हमारी लैंग्वेज, और अगर जिस स्टेट का है वो अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया
कि तमिलनाडु का है वो तमिल लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, बंगाल का रहने वाला बंगाली यूज़ कर सकता है, वो अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है। तो दस द फ्रेमिंग द लैंग्वेज पॉलिसीज वाज द टेस्ट फॉर्म, अगर टेस्ट में है फॉर इंडियन फेडरेशन, तो इट इंस्पायर्ड द कॉन्फिडेंस इन डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल and that no language will be imposed on them. In a way of language policy, they strengthen the unity and integrity of India. तो इस तरीके से एक यूनिटी और इंटीग्रेशन बनाया गया और लैंग्वेज पॉलिसीज आई। तो यहाँ पर हम एक बात और बताएंगे कि आवर जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो रहा था हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो एंड इट वाज डिसाइडेड दैट यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जैसा कि अभी हमने बताया इंग्लिश लैंग्वेज तो वुड बी स्टॉप। तो हाउएवर मेनी स्टेट्स आर्गूमेंट, सबने आर्गूमेंट स्टार्ट किया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लिश फियरिंग, लोगों को डर लग रहा था कि अब इम्पोजिशन ऑफ हिंदी रहेगा। तो आ स्ट्रॉन्ग वायलेंट प्रोटेस्ट की टुक प्लेस इन तमिलनाडु ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया। और यहाँ पर क्या हुआ कि द सेंट्रल गवर्नमेंट विड्रॉल द प्रपोजल एंड इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी कंटिन्यू फॉर ऑफिशियल पर्पस। उन्होंने फिर एक प्रपोजल भेजा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज में पर्पस पे यूज़ होगी। तो इन द पास्ट मैनी टाइम्स सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मिसयूज्ड और कॉन्स्टिट्यूशन डिसमिस्ड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ रिवाइवल द पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लैंग्वेज को लेके भी हुआ, पॉलिसीज़ आई, तो लैंग्वेज पॉलिसीज़ फ्रेमिंग की गई। और आपने देखा कि हिंदी हैज़ बीन आइडेंटिफाई ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, एट द सेम टाइम मैनी सेफगार्ड हैव बीन प्रोवाइडेड फॉर अदर लैंग्वेज ऑल्सो। तो आपने देखा अदर लैंग्वेजेस को भी इम्पोर्टेंस दी गई। तो लिंग्विस्टिक स्टेट में जैसे द फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री वाज द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट इन 1947। जैसा कि हमने आपको बताया कि द बाउंड्रीज ऑफ सर्वर ओल्ड स्टेट इंडिया वेयर चेंज टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लाइव इन द सेम स्टेट। तो द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज़ मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड ऑल्सो मेड द एडमिनिस्ट्रेशन easier. So language policies, framing the language policies was another test for Indian Federation, and under the language policy Hindi has been identified as the official language. At the same time many safeguards have been provided for other language, and central state relation restricting the central relation is one more way of the federalism has been strengthened in practice. So the period after 1990 saw the beginning of new era and coalition of government. जब 1990 में ऐसा भी हुआ कि मेजॉरिटी में आई और दोनों मेजॉरिटी में, तो एक कोलिशन, एक गठबंधन सरकार जब बनी, तो एंड द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन मेनी स्टेट ऑफ द कंट्रीज। तो ऑल द दीज स्टेट्स आर प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट शो दैट कि इंडियन फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे एंड देन इट वाज अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम टू फोर्स। तो यहाँ पर हमने पढ़ा स्टूडेंट की लैंग्वेज की पॉलिसीज़ में किस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया, और 21 लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड हुई और 40% आपने देखा, जैसे हिंदी की हम अगर बात करें